Pal. I welcome you all to the very first session of this guidance series, and today we'll be having very two special guests with us. One of them is Suraj Upadhyay sir. Suraj Upadhyay sir is an ex-student of Triple IT Bhopal 2K17 batch of CSE branch. He is currently placed at Comworld Company as a role of SDET. He is backed a placement of 18 lakhs per annum. Boom. Agrim, over to you. Yes, thank you, Dashar, and hello everyone. I'm Agrin Shrivastava from CSE branch, second year, and today I will be interviewing Pankaj Sharma sir of CSE branch, and he's from third year. And I want to tell you something about Pankaj sir that he is currently a five-star coder at CodeChef, and he's an intern from Geeks for Geeks and a problem setter in HackerUp. और थोड़े से जो आज पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो हाइलाइट्स है मेन टॉपिक की, वो मैं बता देता हूँ कि पहले तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में होते हैं तो हम लोग कैसे इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप्स के लिए और बड़ी कंपनियों में। और दूसरा पॉइंट कि कैसे हम लोग मतलब वो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो मतलब देखना क्या चाहते हैं कि इस कैंडिडेट में क्या है जो ये हमारे जॉब के लिए एक आइडियल कैंडिडेट बन सकता है। Hmm. So yes, Tushar will continue from here. Hello, Suraj sir. We welcome you. We welcome you, sir. Hello, Tushar. Thanks. Hmm. Sir, first of all, can you begin with telling your experience of starting as a fresher in Triple IT Bhopal, then being placed at Comvault? Well, it's a lot of experiences there we are talking about, and Huh. it's 4 years. And if I can condense all the 4 years into a single sentence, then it would be somewhat fun and worth experiencing. Everything was worth experiencing. I mean, you have to live your life and explore things. I mean, this is the first time you get real freedom from your house. Huh. So you have to be, I mean, exploring things on your own. And Hmm. yes, we got to study too in this period, so we have to be a little careful and balancing. So that's the aspect of it. Hmm. And colleges, you got to do what you got to do. So balancing college stuff is, I mean, very mundane. uh, you have to attend classes and not pay much attention, but you have to focus on the subjects. You have to make your fundamentals very strong, and then yes, you have to enjoy. You have to enjoy your BTech. Hmm. Yes, sir. That is the true. So the next thing which I wanted to ask you is how you got placed at Comvault. That is, was it on campus or was it off campus? And what all were the things that you did? That is, what are the resources you used, your mentor, courses, the resume you made, and most importantly, the interview experience of yours. Okay. So I mean, it was like, can you repeat the question, please? I wanted to ask you your experience and how did you got placed at Comworld, the resources you used and your interview experience. Okay. So basically, what you have with companies is that they have two stages when they perform recruitment drives. Hmm. So the first one is actually they will test your technical knowledge, problem solving skills. Okay, and in the Yes. second phase, they will interview you for your Okay. basics, and they will be looking at your employability. I mean, if you are going to work with them, you're going to work with them for a very long time. I mean, 2 to 3 years or 4 years. Some people also work for 10 years, 10 plus years. So they Hmm. look for employability, and they look for that the cooperation they want to see with their fellow colleagues. So Yes. they have that mindset with them. So you have to Hmm. be, I mean, in the technical rounds, it's I mean, very the basic stuff. You have to practice and practice. Yeah. Reason. Yes. The questions are very repeated, and the questions are I mean, you can make a list of 50 questions that get asked every time. Hmm. Yes, so that is the crux of it. And if you want to crack the first phase of the technical round, then you Huh. have to actually beg, borrow, and steal. However, you have to crack it. It doesn't Hmm. affect the second stage. I mean, Achha, they will so not. DSA and all is involved in the first stage, and then you Yes, get to show your projects and all.
only DSA is involved in the first stage, and they are not going to ask you what they're not going to ask you your technical expertise in the interview. Yeah. If the company is, if the company is confident on their first phase, if they're confident that their screening process was good, okay, Hmm. then they are not going to ask the technical questions in the interview phase. Okay. So it's actually in the interview you have to impress the interviewers. uh, you have to impress in a way that you know computers, you're a graduate, in a way, and you know your way around concepts like the computer network concept, the operating system concept, the basic things which you are going to build up your career. Okay, these are the things Yes. upon which you are going to build up your career. So you have to know these things. These are the basics, because if you don't know and if they hire you, then it is Huh. them who are going to suffer, because it is them who will be providing you the feedback, and it is them who will be providing you help for your work, which Huh. normally wouldn't be necessary if you had known. So they True. see that aspect of you, Hmm. and they expect an all-rounder. They expect an all-rounder in computer science. You don't have to be, playing cricket and all this stuff. Huh. You just have to be an all-rounder in computers. You have to know Linux. You have to know this and that, because in companies, what happens actually is they have multiple of roles, and they have Huh. limited set of employees. They want to, utilize their employees, the best they can. They have, True. the revenue per employee. They want to increase their revenue per employee. So you Hmm. have to think like that. You have to be a good candidate, and good candidate, an all-rounder candidate who is Yeah. It ready involves to learn anything. tech knowledge plus communication skills. Yes, Plus. yes, who's ready to Hmm. learn anything. And also in the tech companies, the main thing is that uh, you will have an people from everywhere. Yeah. Hmm. People from every temperament, people of every quality, people of Yeah. every language, every region. You will have everyone, and Yeah. in that case, you need to have your communication skills right. Hmm. So they are obviously going to look for your communication skills and the way you talk. You have to be friendly with them, not nervous. Because if Yes. you're nervous with them, then you are going to nervous your whole career. So you have to Yes. prepare yourself to not be nervous. You have to be friendly. You have to be driving your interview forward. You don't want them to think the tough questions. You have to do the thinking for them, and you have to suggest. What you know. Okay, so that works like that. Hmm. So this could be the crux of this, that for an interview you need tech skills as well as you need to show them your soft skills, how you deal with them. Are you capable enough to work in a team? That is the case. Yes, 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 exactly. And sir, one of the most frequently asked questions is CP versus dev. What is your view on this? That is, a person should be the king of only a one thing, or he should be a jack of all trades. That is, he's doing only CP and getting 6 stars at CodeChef, being master candidate and master at Code Forces, or he should balance his stuff. That is doing competitive programming at the same time making some projects, doing internships, etc. What is your view on that? Okay, even I had the same confusion a year back, and the question I should have asked to myself was how to balance CP and development. Because if Okay. you are going to ignore one, then they have two phases of recruitment. Some companies have 3 to 4 phases. If you look at Amazon, they recruit in 5 stages. Okay, so Yeah. you need your CP and your development, and your general computer expertise. So for CP, what you actually need to do is you need to constantly solve questions. One question a day is enough. Ah, You are in second year or third year, then you have got, how many days? You have got 1,000 days ahead of you. Okay, something like that. 1,000 days. You can prepare 1,000 questions easily. All of these questions are repeating. So actually, you can be good at CP, and mm, you have to make a niche for yourself. Do I want to be a web developer? Am I comfortable with systems programming? Am I comfortable with this and that? You have to decide a niche for yourself. You have to decide a field for yourself, and then you have mm. to develop things around it, and make people believe that you can do what you say. Okay. Yes, that's true.
That's the basic thing. I mean, if you say that I can solve problems, then you have to know CP. There's no other way around. Hmm. You have to solve problem. They will give you a problem. Then you have to solve the problem. And in dev, if you say that I can build a website, then you show them a website well done. Huh. So this is the thing. You have to balance CP and dev. You have to do 2 questions a day, make it a routine, and which I didn't do, but I wanted to do things like Hmm. this. So please take care of this. And in Huh. dev, you have to actually take 1 or 2 projects. I mean, which suit yourself and which you think. I mean, the field you want to go ahead. Huh. You want to be a front end developer, you want to be a back end developer, or you want to be a systems one, or you want to be an Hmm. all rounder. I mean, you if you want to be a potato which can fit in all vegetables, Huh. that's okay too. Okay, so you have Huh. to pick your niche, and So you is it a way that a person who is doing development, he needs to know how to develop an app, he needs to know develop an website. At the same time, he should be working on ML and AI as well. well, ML and AI is actually, I think, this has spoiled a lot of kids actually. If Um, if if this if this the sole objective is grabbing a good placement, so should he do these stuff, just doing everything, each and everything which he can put his hands on, MLAI, website development, as well as at the same time the app development. no, 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 no. I mean, actually, you have to pick just one niche. Yeah. Okay, you cannot be simultaneously a web developer and an app developer and an MLAI expert Hmm. and Yes. and you cannot be that. You have to you have to choose a niche. But the thing with ML and AI is that companies don't want freshers to work on these stuff. Huh. They want experts, they want field experts, they want, I mean, people with a lot of experience. So if you want to get a job with ML and AI, then you have to be, I mean, very talented. Actually, you have to work very hard Hmm. compared to other things. But I mean, that can work too. But for me, I can say that I have done 2 to 3 courses for ML and AI. Huh. Okay, and I have spent a lot of time in ML and AI, and nothing of that has worked for me. So so I mean, for most of you guys, you are going to get a job which is not related in ML and AI. But if you're very damn serious for ML, then you can go for ML, but you have to work very hard for that. Yeah. Yes, yes. So this is it. Okay. You have to Hmm. choose. I mean, you have to decisively choose. You have to have. I mean, choose wisely your field of. That is the thing. Yes. Huh. And the thing which I missed was competitive programming versus development. Is it like we need to do both the things simultaneously, or those who are currently in the first year can just focus for a year on competitive programming, get good with problem solving, and then they can move on to the development side, or is it vice versa? Is something like that more beneficial, or jiggling with these two things, that doing 1 week competitive, then 1 week development, like that? I know, and if you're in a first year, then you have to make your logic because you have got an ability to solve maths problem from your JEE mains. Okay, but in computer science it's different. You have to think in steps. It is discrete. It is discrete mathematics. It is not taught in 11th and 12th. So it is very computer programming is very different, and you have to build your basics in your first year. Basics, I mean, your programming languages and your basic concepts of computers. So I mean, you don't have to get into dev at the start. I mean, it's actually the third year is for development, and Hmm. in first and second year you can uh, go, Documenting stuff. and first and second year you can go with CP, but you Hmm. don't have to leave CP once you get to the third year because the real games begins in the third year. Huh. Yes, Hmm. Okay, so that is the case. And I want to all of you make aware of you that the fact that Suraj sir is a very enthusiastic open source contributor. And man, he has contributed to the TensorFlow's official repo. So, sir, I want you to guide us about open source, your beginning, what were the problems faced, your journey in the open source, and how can a person start contributing in first year, second year to open source? well, the biggest advantage in open source is its community. Okay,
You are Hmm. not contributing to projects, you're contributing to community, and you're being a part of a community. Yeah. So yes, it is actually open source is a, I mean, एक झलक है तुम्हारे career कैसे होगी आगे. Okay, Hmm. you work in teams, you work in team, and you communicate with your team manager just as you do in your actual career. You do Hmm. it in your open source. So what actually in open, so if you want to start a career with open source, I mean, you can do so in first year and second year. You have to pick up you have to pick up a niche. Then again, there is a question of niche. You have to Ah. decide. You have to decide your field. You have to pick up a project, and then you have to communicate with the community. You have to ask them what are they planning for the project. Okay, Hmm. what are their plans, because it is not your project. Okay, there is a creative freedom, but it is their project. You have to respect that, and you have to ask them what are their plans, what are their vision, and then you have to contribute to that. Hello. Hello, am I audible? Ah, yes, sir. You're audible. Okay. So basically, I started my open source journey in 2018, 2019 in my third year with Ah. the GSOC. With this Yeah. GSOC, I basically contributed in Mbox. Mbox is I mean, an operating system for embedded systems. So Okay. I mean, yes, first I contributed in Mbox, made some APIs changes there. Then I contributed in Tor, improved their IPv6 system, and then I contributed in Linux, did some janitorial work. I mean, nothing fancy, but just janitorial works. Then I contributed to TensorFlow very recently. So these are my four. So you can see there that I have chosen my niche as a systems programmer. Okay. Yes. Yes, you have to choose your niche. Mbox is a Hmm. systems program. Tor is related to computer networks. Linux is your operating system, Okay. and TensorFlow is your MLAI, which I Hmm. was studying at that time. So you Yes. have to choose your niche, approach a community, make a place in that community, and start contributing to the project. You have to be over communicative, and you have to if you enter into community, they will do the rest work. Yeah. You just That. code. Yes, they are Hmm. going to do the rest work. And if is here in anyone here is from Mumbai, because actually if you are going to, if you're aboarding a train, then actually it is a public which will make you enter in the train. Okay, in the local train, I'm talking about it. You Yes. just have to stand there, and the people around you are going to push you into the train, and the people around you are going to take you out of the train. So it is like that. You have to get involved with the community. You have to understand their vision. You have to understand their project and the product, and then you have to choose yourself what you're going to contribute, and then you have to start contributing to it. So Hmm. that's it. Yes. That's open That is the source. case. So if I give a crux about this, if you want to contribute, then first of all select your niche, then just start communicating to the community. Then rest will Yeah. happen automatically. Just get in the flow of that. Yes. Because they are Hmm. very experienced and they are working it for free. Okay, so they Yeah. know better. Hmm. Yes. So the next thing which I wanted to ask is, if someone is targeting good placements, then what kind of projects she might work on as so as to show in the resume. So this again is actually companies look for employability. Okay, so Hmm. you need to make projects such that you showcase your work, you showcase your teamwork. So again, open source contribution is best fit for it. But if you want to make a project, then you have to first, obviously, you have to choose your niche again. I mean, it can sound as a broken record, but yes, this is very important. The only confusion a person graduating from computer science faces is his niche. Okay, Yes. you have to go here or you have to go there, because if you log in into Twitter, then you see all the web developers Hmm. on your timeline. Okay, only web developers. If you go onto any platform, then only MLAI person. If you go onto your GitHub, only your systems programmers are there. So it is Hmm. very easy to get confused, and there's also a hype for hacking. Okay, you Yeah. have to avoid it. It's Hmm. nothing.
There's nothing you have to avoid it. Just listen to this piece of advice. You have to avoid every distraction. You have to choose a niche. You have to build a project. Any project is fine, which and show that you are willing to work. And if you are willing to work, then you can work for 2 to 3 months straight on a project, and you can deliver what you're asked about. Okay. Yes. For me, I made a minimal OS thing. Yeah. Again, you see my niche is systems programming. I attempted to make an operating system, a minimal one. Then I made some progress and I left the project. But again, I learned many things from it. And when I was interviewing, okay, and they asked me about minimal OS, and they were very impressed about it. That I undertook this huge task of making a bootable OS. Okay, you That is have to awesome. yes, you have to do assembly, and then you have to make your own C libraries. Then you have to make a so that's it. So and you have to show your dedication. Whichever project you choose, you have to show your dedication that you have given your best, and that you are employable. You have to show that you are employable, and Yes. the rest you have to leave it to the interviewer what he or she is going to ask. So and yes, that's it. You have to make a project and you have to stick That to is it. awesome. Yes, Hmm. yes. If you are a web developer, If uh, yes. Yes, what we if a person goes for game development thing, can he make games to show his projects? I actually tried my hands at gaming too. Oh, So I yes, I made actually 7 to 8 games in Python Pygame. It was very rudimentary games. I also mentioned it in my resume, but no one asked any question yet. So uh, yes, you so can if a go into person wants to pursue that as a hobby, then he can do those stuff. Otherwise, gaming. in placement aspect, huh, Gaming is actually very intensive, so you need very a large amount of time. So hmm, actually, if you don't have something to show as your output, okay, if you don't have any output, if you're working in a game for 2 to 3 years and you don't yet have an output, then that isn't going to leave any impression on your interview. You have hmm, to make if you're making a game, you have to make a game that gets done in a year, that yeah. leaves an impression. And if you're getting stuck in a game, making a game, you have to make a game engine or whatever. But if that isn't working at the time of your interview, then that's a waste of time. Huh. Because If it's you're a fantasy of many of the students to make a game like GTA, Valorant, and play that. I Huh. mean, yes, you can make games, but you have to consider your time too. Okay, your time is Yeah. valuable as a developer. So And yes, sir, yes, hello. yes, yes, yes. Uh, Hello. sir, very question especially for our juniors. I guess this might give them a new thing to food for thought. That is studying everything which is taught in college classes. Worth it. That is, does maintaining good grades in college really helps? Well, I mean, my friends who didn't score above 7.2 couldn't sit in company placement. So you have to Okay. keep it above above a respectable level. Okay. I mean, if your father scolds you for your marks, then that is not good. So this is the thing. Okay. If you are going with 6.5, 6.3, then that's not good. You have to make it 7.5, 8.0, 8.5, that at a respectable level. And online classes or offline classes, whatever they are teaching, is actually you don't have to pay any attention. You have to get your attendance straight. You don't have to get lagged in your examinations. You don't want to get troubled by your professors. So you have to make your attendance. Okay, this is just that. But the actual importance is your subjects. Teachers are not important. Everyone understands that, but subjects are actually important. Okay, this computer networks, this operating systems, this discrete mathematics, they're very important. Okay. Okay, in your interview, in your CP, in your development, and in your whatever you say gate, whatever exam you're doing, these subjects are Hmm. very important. And the teachers don't care whether you get placed or not, whether you crack gate or not. They are doing their job. Just let Hmm. make them happy. That's it. You have to do your work, and actually you have to make your basics strong. You have to actually Yeah. study the subjects and make it happen.
studying subjects like DBMS, compiler designs, they help in interviews too. Compiler design is it should not be a subject. It should not be taught. So DBMS is actually a good one. You have to focus on DBMS. You have to focus on computer networks, these subjects, and this compiler design, and these don't matter anything. Okay, sir. And sir, this was a very informative session. Really, thank you for this time of yours. Sir, at the end, just a message for those in first year or second year, that a roadmap kind of thing or a summary kind of thing that they need to follow in order to grab good placements, a message kind of thing. You have to allocate some time for your college subjects, okay, and then you have to enjoy your life, because this is the only time you're going to get Yes. to get yes. So first and second year are for exploring and enjoying and the fun and stuff. Third year is you realize, and the fourth year you actually get working. But don't do that. Yes. You start working with your first year, then your load will be balanced. Okay, फोर्थ ईयर में टेंशन नहीं होगा आपको. Hello. Yes, hello. Yes, sir. Sir, thank you very much on the behalf of all IIITB for this valuable guidance. Agrim? Yes, thank you, Shiran sir, for your valuable pieces of advice, and thank you, Tushar. And now we will be switching to Pankaj sir. And starting, sir, can you give us a brief introduction about yourself? Okay. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. So मतलब इंट्रोडक्शन तो स्टार्टिंग में दिया ही होगा, राइट? हाँ सर, आप एक बार खुद अपने आप के बारे में बताइए. तो देखो, इंट्रोडक्शन के बारे में, इंटर्नशिप गीक्स में है मेरी, और कोडिंग निंजास में है, हैकरत में, और इंटरव्यू किक स्टार्ट में भी है. इसके अलावा भी 2-3 स्टार्टअप में की थी जो बीच में छोड़ दी थी, ठीक है. और अपार्ट फ्रॉम दे फ्रीलांसिंग भी की है. एक चेक करके वेबसाइट होती है, उसमें फ्रीलांसिंग भी की है, राइट. हाँ, बट ये सब तो ठीक है, ये सब अचीव किया है, राइट. पर एक्चुअली मैं इंट्रोडक्शन क्या है वो मैं आपको दिखा के बताऊं, ठीक है. स्क्रीन तो दिख रही होगी आई थिंक. तो ये मेरा कोर्स का प्रोफाइल है, 5 स्टार है, ठीक है. और आप यहाँ पे देखोगे तो खाली 5 कॉन्टेस्ट किए हुए हैं और 5 स्टार. ओके, तो बट ऐसा नहीं है कि 5 कॉन्टेस्ट या 5 स्टार बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है. तो आप यहाँ पे देखोगे एक वेबसाइट होती है कोड फोर्सेस, ठीक है. वो कोड से काफी अच्छी और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं. और जब मैंने इससे स्टार्ट किया था तो आप सबकी तरह ही हुआ था, यहाँ पे एकदम 0 नेक्स्ट टू नील, राइट. और फिर थोड़ा सा इंक्रीज किया, एक क्वेश्चन हुआ, फिर 2 हुआ, और लास्ट तक यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है. तो मतलब ये है कि एवरेज प्रॉब्लम सॉल्वर थे, फिर धीमे धीमे इम्प्रूव किए, और फिर और इंटर्नशिप्स वगैरह ये सब स्किल्स होंगी तो फिर वो आती जाती रहती है, राइट. तो ये स्मॉल इंट्रोडक्शन था. थैंक यू सर. अब सर आप अपनी कॉम्पिटिटिव सर आपने कैसे स्टार्ट की थी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से, और सर कैसे आपकी जर्नी रही उसके बारे में कुछ बताइए हम लोग को. या श्योर. तो बेसिकली मैंने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था, जो ये दिखाई दे रहा था 2018 में. उसमें पहले में 0 क्वेश्चन हुए थे, फिर मैंने छोड़ दिया था, और फिर उसके साथ कोचअप भी किया था. 1-8 क्वेश्चन होते थे, फिर छोड़ देते थे. 3-4 महीने फिर एक 8 क्वेश्चन फिर से किया,
और फिर से छोड़ दिया स्टाइल। हाँ यस सर। हेलो सर, आपका एक और था कि सर आपने अभी एक हैकर पे क्वेश्चन सेट किया था और वही क्वेश्चन आपके फ्रेंड के इंटरव्यू कोडिंग राउंड में आ गया था। सर ये क्या सही है? मतलब सर आप कैसे आप बता सकते हैं कि कैसे सेट होते हैं क्वेश्चंस और क्या उनका एल्गोरिथम रहता है कि हमें मतलब ऐसे सॉर्ट करना बच्चों को और ऐसे देने हैं। ओके, सो बेसिकली क्या होता है ना, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना अपने, ऐसे कि हैकरत हो गया, हैकर रैंक हो गया, यस सर। हेलो हेलो सर, यू आर नॉट ऑडिबल। एक्चुअली पंकज का है, वो रिजॉइन कर रहा है। अच्छा अच्छा, ओके सर। तो आवाज आ रही है ना? यस सर यस सर। तो हाँ, तो जर्नी के बारे में बात कर रहे थे हम। यस हाँ सर। जी, तो स्टार्ट किया था मैंने और स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं होते थे। फिर थोड़ी देर बाद और ट्राई किया, 3-4 महीने बाद, दिसंबर अराउंड सितंबर का टाइम था शायद, स्टार्टिंग में किया था मैंने फर्स्ट ईयर में। कोड फोर्सेस कोड शेप से स्टार्ट किया था एक्चुअली में। उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था और फिर मैंने छोड़ दिया। तो उसमें पता नहीं एक चीज हुई थी मेरे साथ कि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था एसटीएल के बारे में कि वेक्टर क्या होते हैं। उसमें मैंने एक चीज गलत समझ ली थी कि वेक्टर जो होता है उसमें उसका साइज अपने आप ही रीसाइज हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है। तो मैं वेक्टर में VO1 करके डिक्लेयर करके n नंबर्स इनपुट लेता था, तो हमेशा से एरर टाइप का आता था और मुझे ये फिगर आउट ही नहीं होता था। इसी चीज को छोड़ के फ्रस्ट्रेट होकर मैंने छोड़ दिया था। फिर अराउंड जनवरी में एक और बार ट्राई किया, बीच में 1-2 महीने बाद, और फिर उसमें भी नहीं हुआ। फिर फर्स्ट ईयर ऐसे निकल गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाए अपन, बस असाइनमेंट्स वगैरह जो होते हैं कॉलेज में वो सभी चीजें। फिर सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना कि मैंने मई में दिया था, उसमें भी क्वेश्चंस नहीं बने थे। पर फिर जून में हमारे कॉलेज से 2 दिन बच्चे स्टार्ट कर रहे थे, मतलब लॉन्ग चैलेंज देना। उसमें सुमित ने दिया था आई थिंक, उसमें उसने 4 या 5 क्वेश्चन किए थे। उससे देखकर मेरे को लगा कि अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर उसमें मैंने 5 क्वेश्चन बनाए, राइट। यस सर। हाँ, सर उसके फिर बाद फिर यस सर। सो फिर ये था कि आप जैसे आप इस समय 5 स्टार कोडर है कोड शेप पे, तो सर आप लेवल 0 से उठ के इतना अच्छा आपका लेवल हो गया, तो मतलब क्या आपने ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग में? और सर इस कंसिस्टेंसी द की फॉर दिस थिंग। ओके, सो बेसिकली क्या होता है इसमें कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। मतलब पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि आपके पास सराउंडिंग होनी चाहिए, कोई ना कोई, मतलब कॉम्पिटिटिव का मतलब भी होता है कि कंपटीशन, राइट। तो मतलब कॉम्पीट करने वाला कोई चाहिए बेसिकली, कोई भी हो, राइट। तो उसको देखकर आप थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सको। ओके, पहली चीज ये। और जब मैंने स्टार्ट किया था 5 क्वेश्चंस हो गए मान लो, फिर नेक्स्ट में 3 हुए, राइट। और फिर से डिमोटिवेशन वाली चीज आ गई, राइट। पर यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने पिछले 1 साल से नहीं किया वो मैंने किया। वो क्या किया, जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे मेरे से, राइट, उसको मैंने सॉल्व किया। और फिर वो जब क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो मेरे को समझ में आया कि हाँ ये क्वेश्चन हम कर सकते थे, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे लॉजिक पर नहीं हो पाया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अगर हम ट्राई करेंगे तो होगा। और ऐसे धीरे धीरे करते करते लगातार इम्प्रूव होते चलेगा, राइट। तो मतलब यही है, जो चीज आपसे नहीं हो रही है वही आपको करना है, तभी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और ये चीज ना कि सीपी हर चीज में वैलिड है, राइट।
अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हो, आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आती है, तो आप स्टार्टिंग में ट्राई करो, बेसिक सीखो, तो उसके बाद प्रोजेक्ट बनाओ। आपको बेसिक नहीं आ रही है तो आप ट्राई करो, एक जगह समझ में आया तो दूसरा ट्यूटोरियल देखो, इसी टाइप से सीख का है। आपको एक क्वेश्चन आपने किसी से पूछा, आपने किया, आपसे नहीं हुआ, आपने किसी से पूछा और उससे आपको समझ नहीं आया, तो आप किसी और से पूछो, इस टाइप से। बट आपको खुद से करना है वो। सर मतलब कि हम लोग को जैसे कॉन्टेस्ट आता है, क्वेश्चन एक बार समझ नहीं आया तो ये नहीं कि गूगल में क्वेश्चन हम लोग ने डाल दिया कि भाई देख लो, जो आंसर जहां मिल जाए वैसे ही हम लोग छाप देंगे। सर ये नहीं करना, हम लोग को मतलब खुद से ट्राई करना है और ट्राई करते रहना है। और अगर तब भी नहीं हो रहा है तो कॉन्टेस्ट एंड होने का वेट करना है, उसके बाद अपने दोस्तों से डिस्कस करना है, सीनियर से। हाँ, और गूगलिंग का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मैं बता देता हूँ यस सर। कि आप गूगल कर लोगे कॉन्टेस्ट में, वेरी गुड, पर इससे आप एक बहुत बड़ी चीज लॉस कर रहे हो। वो क्या है? आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आप कॉन्टेस्ट में सॉल्व करते हो खुद से, तो आपको बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है वो इंप्रूव हो रही होती है उसी टाइम से, कि आपने कॉन्टेस्ट में कोई ऑब्जर्वेशन देखा, आपने खुद से वो ऑब्जर्वेशन सोच लिया बेसिकली। और या फिर ये डेटा स्ट्रक्चर लग रहा था और आपने ये देख लिया। बेसिकली क्या होता है ना, सीपी जो हमारी होती है वो होती है कि हमें कोई भी चीज जो है, डेटा स्ट्रक्चर जो हो गए, एल्गोरिथम्स हो गए, उसको कैसे लगाना है, अंदर कैसे वर्क करता है, वो हमें उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, यस सर। तो आपको बेसिकली एप्लीकेशन सिखाती है सीपी, इसलिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो जाती है। तो अगर आपने गूगल कर लिया डायरेक्टली, आपने छाप दिया क्वेश्चन, तो आपने वो चीज मिस कर दी। आप इंटरव्यूज में अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो आपसे वो नहीं हो पाएगा, इंटरव्यू में आप गूगल नहीं उस कर समय तो नहीं पाओगे, बने। और उस समय बहुत दुख होगा एक्चुअली में। सर तो और मतलब एक और चीज, सेकंड चीज ये होती है, पहली चीज तो ये हो गई इंटरव्यू वाली, दूसरी चीज ये कि कभी कभी ना होता है, कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो लिंक्ड रहते हैं। सपोज करो कोई क्वेश्चन है मेरा फिबोनाची का है, ठीक है, आप सबसे क्वेश्चन पूछते हैं सिंपल सा कि फिबोनाची का जो आप सबको पता है कि बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है अपनी करने के लिए, मतलब nth फिबोनाची नंबर में निकालना है, तो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कितने मिनट, क्या लॉग एन हो सकती है, ग्रेट। बट ग्रेट, बट इसमें पर लॉग एन कैसे आती है वो पता है? हाँ सर, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन से करते हैं। ओ, मैट्रिक्स कैसे आता है ये पता है आपको? सर मतलब मैंने पढ़ने की कोशिश करी थी ऐसे ही, तो मेरे को एग्जैक्टली समझ में नहीं आया था, शायद वो कुछ वेक्टर से रिलेटेड चीज थी, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया था। वो जो nth एलिमेंट ऑफ अ रेकरेंस रिलेशनशिप निकाल देना अपन उससे, हाँ वो समझने की कोशिश। हाँ वो ठीक है ठीक है, मतलब थोड़ा तो बेसिकली यही है कि आप जब भी कोई चीज करो ना उसको समझो, मतलब समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको मान लो कि आप उठा के कर लोगे, तो जो मतलब जैसे कि वो उसमें वो आता है, क्या बोलते हैं, फिबोनाची में एक बनती है 1001 करके एक मैट्रिक्स बनती है, 1110 करके बनती है। उसमें क्या करते हैं हम कि जो f ऑफ n-1 रहता है, एक को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक को 1 से, तो इस तरीके से हमारी आ जाती है इस टाइप से। भी मैं करके दिखा देता, पर चलो कोई नहीं, टाइम का थोड़ा वो है। तो मतलब ऐसा है कि जब हम लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम लोग को ब्रूट फोर्स से शुरू करके अब सबसे ऑप्टिमाइज तक जाना होता है, मतलब हर टेक्निक ट्राई तक जाना है आपको, और आपको ये भी जानना है कि अंदर से वर्क कैसे कर रहा है, बिकॉज ये चीज इंटरव्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट रहती है, और सीपी में जो हार्ड प्रॉब्लम्स होती है अपनी, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, राइट? ओके, थैंक यू सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि सर आपने अभी तक काफी सारी इंटर्नशिप करी है, तो पर सर ऐसा नहीं है कि आपके जिसने आपने अप्लाई किया उसमें हो गया, पर इसलिए सर बताइए आपने किस किस कंपनी में अप्लाई किया और कैसा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा? ओके ग्रेट। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता देना चाहता हूँ, मतलब कोड फोर्सेस की मैंने बात की थी ना, इसके अलावा और भी वेबसाइट्स पे गया था, आपको खाली कोडशेफ ही दिखाई देता होगा, ठीक है, तो कोडशेफ अकेला नहीं है, ना कि कोड फोर्सेस अकेला है, मैंने ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे मतलब सीपी का किया था। उसमें से एक वेबसाइट है एडकोडर करके, नाम नहीं सुना होगा मैक्सिमम ने आई गेस। उसमें बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि हमने टूर्नामेंट ऑफ फ्रेशर्स में किए थे। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल, जस्ट हमें ये बताना है प्रिंट n/2 टाइप का,
और 6 क्वेश्चन रहते हैं, तो बिगिनर्स के लिए काफी सही रहता था। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वो भी करा, तो वहां से भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता था। और फिर इसके अलावा मैंने जहाँ पे भी कॉन्टेस्ट मिले थे वहां पे किया था। ऐसे कि हैकर रैंक पे भी मैंने काफी ऑलमोस्ट सारे कॉन्टेस्ट किए हैं, एक दो को छोड़ के जो भी हुए हैं, और हैकर पे भी काफी किए थे। और इसके अलावा भी मतलब जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, जैसे कि कुछ मैं नाम बता देता हूँ। जैसे कि एक होता है अपना गूगल कोड जैम करके होता है, हाँ, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। और एक कोड बिटा करके होता है, वो जॉब के लिए भी होता है। उसमें मैंने मैक्स रैंक जो थी वो 83 थी, और उसमें करीब 3 लाख शायद पार्टिसिपेंट थे। ओके, तो मतलब ये है कि जितना अच्छी ज्यादा हो रैंक है। सके। क्या? सर ये तो काफी अच्छी रैंक थी। अच्छी तो है, बट 25 होती है तो फाइनल्स में पहुंच जाते हैं। ओह, तब यही रहता है सीपी में, अच्छा कुछ नहीं लगता है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। बाकी ये है कि मतलब अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं होते, जितने ज्यादा आप स्टार्टिंग में हो, आपको स्टार्ट मिल गया अच्छे से, क्योंकि मेरे को ना स्टार्ट नहीं मिल पाया था अच्छे से, इसी वजह से मेरा उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया जितना आई थिंक हो सकता था। स्टार्ट इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि अपने कॉलेज में कुछ था नहीं कम्युनिटी टाइप का, राइट, बट अब है बेसिकली। तो जैसे कि हमने फर्स्ट रेस के लिए काफी इससे स्टार्ट मिल गया उस टाइप से। स्कॉट तो चैनल यार है। और बहुत सारी चीजें मतलब, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको स्टार्ट नहीं मिल पाया तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। जिंदगी में मौके आपको काफी सारे मिलते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, फिर 1 साल चला गया, फिर दोबारा स्टार्ट किया। उसके बाद भी मैंने कोटपो से छोड़ दिया था, कोटपो से दोबारा स्टार्ट किया। तो मतलब यही है, आप छोड़ो पर दोबारा एक ना एक पॉइंट पर आपको स्टार्ट करना चाहिए। बस एक बार स्टार्ट करना होता है, फिर आपका इम्प्रूवमेंट अपने आप बढ़ने लग जाता है। और हर जगह हमें ट्राई करना चाहिए। ठीक सर, तो सर ये तो सर हम लोग देख ले कि मतलब हम लोग को रुकना नहीं है। मतलब अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव सोच ले कि हम लोग इसमें एक्सेल करना है तो ट्राई करते रहना है। नहीं आ रहा आउटकम, कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी आएगा। एग्जैक्टली। यस सर। तो सर अब सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आपने इंटर्नशिप के लिए काफी जगह अप्लाई किया, तो सर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको क्या कैसा लगा, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इंटर्नशिप में। और सर आपने कैसे अप्लाई किया, आपको पता कैसे चला कि हाँ भाई यहाँ पे ओपनिंग है इंटर्नशिप की, हमें यहाँ अप्लाई करना है। और सर रिफरल्स के बारे में भी। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो कुछ किया नहीं इंटर्नशिप को, बिल्कुल भी ट्राई एक किया था बेसिकली। एक बार अप्लाई किया था सेकंड ईयर में। 2 3 किए थे एक्चुअली में। एक होता है एक्सपीडिया का, होता है हमारा। एक्सपीडिया काफी अच्छी कंपनी है। और कंपनी के बारे में अगर मैं बताऊं तो बेसिकली जो स्टार्टिंग में बोला था मैंने, जो शायद नहीं बोला था, जो दिखता है वो होता नहीं, राइट। तो अगर आपको ऐसे दिखाई देगा कि 1 करोड़ का पैकेज है, तो वो एक्चुअली में होता नहीं है। और जो आपका बेस दिखाई देता है कि 12 बेस है, तो उसका मतलब ये नहीं है को 12 इन हैंड मिल जाएगा, उसके अलावा टैक्स वगैरह भी लगता है। ओके, तो आप ये समझ सकते हो कि एक्सपीडिया जो उसमें 12 का बेस है, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था इंटरव्यू बिट पे, और हर साल होता है ये चीज। अच्छा हाँ, तो उसमें मैंने फर्स्ट राउंड दिया था, फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ था, और सेकंड नहीं हो पाया था। और क्यों नहीं हो पाया था, उसका सिंपल सा रीजन ये था कि उस टाइम में बहुत ज्यादा लॉन्ग चैलेंजेस करता था, मेरे को शॉर्ट का बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। तो शॉर्ट टाइम में क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, ऑल दो आई नो द क्वेश्चन, राइट। तो एक चीज तो ये लर्निंग है कि लॉन्ग इज गुड, राइट। आपसे स्टार्ट नहीं हो रहा है तो लॉन्ग से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट इन द एंड आपको शॉर्ट करने ही पड़ेंगे। तो हो सके तो जितने ज्यादा शॉर्ट से प्रैक्टिस कर सके उतने ज्यादा करें। ओके, क्योंकि जितने भी कोडिंग राउंड्स होंगे उसमें आपको 1.5 से 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा, और उसमें आप सी सर पे उस रिलेटेड प्रेशर में बेसिकली मतलब हम क्वेश्चन लोग होते को प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत होनी चाहिए। जैसे एडवांस और जेई मेंस में होता था कि एक टाइम लिमिट होती है, उसमें हमें सॉल्व करना है, इसकी आदत हैं। डालनी एग्जैक्टली, पड़ेगी। हाँ, मतलब यस सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अच्छा सर। और तो सर वो आपको ये ओपनिंग के बारे में पता कैसे चला, ये सब बताइए। ओके, सो बेसिकली इसका एक छोटा सा चीज है कि मतलब क्या होता है ना कि बेसिकली आप अगर लिंक्डइन पर, मैं बेसिकली खाली लिंक्डइन यूज करता हूँ कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए, इंटरशाला वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, तो लिंक्डइन में क्या होता है, अगर आप अपने बेसिकली कनेक्शंस बढ़ा लो, अराउंड 2,000 के अराउंड कर लो, या 1,500 भी कर लो, तो उसमें ये होता है कि अगर कोई लाइक करेगा कोई भी पोस्ट को जो कि रेफरल वाली हो, या फिर बेसिकली हम अप्लाई करने वाली हो, तो वो आपकी फीड में दिख जाएगी। तो आप वहां से, मेरे को दिख जाता था बेसिकली। अगर आपको इतना भी नहीं करना है तो कुछ है ये, मतलब लिंक्डइन पे जो एक्टिव रहते हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, जैसे कि एक अर्श गोयल करके हो गए हैं इस टाइप से।
बट सेकंड वे इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें फिर आपको दिख जाता है कि रेफरल्स कौन, किसने रेफरल का पोस्ट डाला है, इसमें कौन कौन सी में मतलब वैकेंसीज हैं इस टाइप, राइट। सर सर मतलब कनेक्शंस बढ़ाते रहना है, क्योंकि सर जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे उतनी चांस बढ़ेगी हम लोग को पता लग जाएगा कि आसपास चल कर रहा है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा भी अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कि पहली चीज तो ये होगी, ठीक है, आपने अप्लाई कर लिया, हाँ, कि आपको पता चल गया कि ये अपनी ओपनिंग है, ठीक है। आप अप्लाई करने के तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली उनका जो जॉब पोर्टल होता है वहां पे आप अप्लाई कर दो। सेकंड चीज क्या होती है कि आप किसी एम्प्लॉय को मैसेज करो रेफरल्स के लिए, हाँ। रेफरल्स, हाँ सर हाँ, ये रेफरल्स का सर प्रोसेस क्या होता है? मतलब काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रेफरल क्या होता क्या है, इससे क्या मिलता है हम लोग को, तो सर उसके बारे में बताइए। बेसिकली क्या होता है रेफरल में, मतलब जैसे कि हम बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेंट्स आ जाते हैं जो जॉब पोर्टल रहता है, हाँ। तो उसमें ना क्या होता है कि जो कंपनी क्या कहती है अपने एम्प्लॉयज से कि इनमें से आप कुछ मतलब जो बंदे उन्हें रिकमेंड कर दो, ताकि हम उनका टेस्ट या इंटरव्यू ले सके इस टाइप से, राइट। तो अगर आप डायरेक्टली उनको अप्रोच करोगे तो आपके पास टेस्ट लिंक आने का चांसेस ज्यादा होंगे, गारंटीड नहीं है कि आएगा, पर चांसेस ज्यादा होंगे। और एक्सपीरियंस आपको इंटरव्यूज भी डायरेक्टली आ सकते हैं कुछ जगह, राइट। और जब आप रेफरल से अप्लाई करते हो तब आपको एक इनविटेशन आता है मेल पर, उस इनविटेशन मेल से आपको अप्लाई करना रहता है, तब आपको रेफरल मिलता है। तो जो एम्प्लॉय होता है बेसिकली इंटरनल पोर्टल पे अप्लाई करता है, उससे आपको मिलता है। मेजरली जो बिग कंपनीज होती है उनमें ये चलता है। अच्छा सर, सर आपने इंटरव्यूज दिए तो उसमें सर कुछ गलतियां भी की होंगी, तो सर उन गलतियों के बारे में बताइए कि मतलब आपने ऐसा कुछ लगा हो आपको बाद में कि हाँ यार ये नहीं करना चाहिए था, इससे शायद थोड़ी इमेज स्पॉइल हो गई यार, थोड़ा मतलब हम शोकेस नहीं कर पाए हमें क्या क्या आता है। ओके, ठीक है। हेलो। हाँ, इस इंटरव्यूज में क्या क्या गलतियां करनी चाहिए, है ना, ये पूछ रहे हो? यस एग्जैक्टली। हाँ, गलती से पहले तो आपको इंटरव्यूज देने चाहिए, पहली चीज। हाँ, और पहली चीज के लिए, और बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि कहाँ पे। मैक्सिमम टाइम तो ये होता है, मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है कि वो आप कहाँ पे अप्लाई करना है। आप अप्लाई भी कर दोगे तो उसके बाद क्या होता है ना, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू नहीं मिलता है, काफी जगह ऐसा होता है। हाँ, बीच बीच में भी स्टेजेस होते हैं। इंटरव्यू से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोडिंग राउंड कैसे निकालना है। और अगर कोडिंग राउंड नहीं तो जो डेवलपमेंट वाली कुछ स्टार्टअप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक टास्क दे देते हैं बेसिकली, छोटी मोटी एप्लीकेशन बनाने को, या फिर कुछ अलग टाइप का टास्क दे देते हैं। अगर प्रॉब्लम सेटिंग का कोई कंपनी है तो वो प्रॉब्लम सेट करने को दे देगी, इस टाइप से, राइट। तो पहले अपन उस पे आते हैं कि अपन ना उसको कैसे क्लियर करें, राइट। फिर आप इंटरव्यूज पे दे पाओगे। अगर आप कोडिंग राउंड ही नहीं निकाल पाओगे तो आप फिजिकली इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाओगे। ओके। और रिगार्डिंग रेफरेंस एक पॉइंट, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप 5 स्टार हो और या फिर आपका सीपी बहुत अच्छा है, आपने बहुत जगह झंडे गाड़े हुए हैं, ऐसे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास ये हो तभी आपको रिफंड मिलेगा। अगर आपके पास सपोज आप किसी गेम कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, ओके, और आपके पास गेम्स हैं जो आपने काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो आप वहां पे भी जा सकते हो रेफरेंस के लिए। तो अगर आपका अच्छा होगा तो दे कैन रेफर यू, राइट। सर मतलब कि हमारा जो प्राइमरी और राउंड होता है इसमें वो कोडिंग राउंड होता है, हाँ जी, और सर उस कोडिंग राउंड को क्रैक करने के लिए मतलब क्या क्या एसेंशियल्स हैं कि तुम्हें ये आना चाहिए तभी तुम इन कोडिंग राउंड में एलिजिबल हो कि इनको क्रॉस करने के। तो लाइक डीएस एल्गोस की इंपॉर्टेंस क्या होती है इन कोडिंग राउंड में? डीएस एल्गो का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली मैंने खुद भी प्रॉब्लम्स कोडिंग राउंड्स के प्रॉब्लम सेट किए हैं क्रैक में, तो आई नो कि कैसे करते हैं हम। बेसिकली क्या होता है कि जो मेजोरिटीज कंपनीज होती हैं या तो आपको 2 क्वेश्चन देंगे या फिर 3 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। और अगर 3 क्वेश्चन देंगी तो ऐसे में शेयर चैट का ऐसे ही होता है। शेयर चैट में क्या होता है, एक इजी, मीडियम और हार्ड इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर इजी क्वेश्चन की बात करें तो डायरेक्टली हमारा इजी क्वेश्चन ये हो गया
कि मेरे को फिबोनाची नंबर है वो मेरे को निकालना है, ठीक है, ओ एन टाइम में। तो ये इजी क्वेश्चन हो गया। ओके, अब इसी चीज को मेरे को लॉग एन में करना है, तो ये थोड़ा मीडियम टाइप का हो गया है। ओके, यस सर। आप इसको मेरे को हार्ड करना है, तो मैं क्या कहूँगा, L2R जो फिबोनाची नंबर है उनका मेरे को प्रोडक्ट या सम चाहिए। मेरे को क्यू क्वेरीज है मेरे पास, उनमें से L2 लेके R तक के फिबोनाची जो नंबर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट या सम या जोर या फिर जो भी चीज मतलब टाइप करना है उस टाइप से, तो ये हार्ड प्रॉब्लम में आ जाता है, राइट। तो बेसिकली, और अगर डीएसए वाइज बताऊं मैं, तो जो फर्स्ट चीज इजी प्रॉब्लम होगी उसमें ज्यादा डीएसए नहीं लगेगा, खाली इम्प्लीमेंटेशन टाइप होगा। और जो मीडियम होगा उसमें डीएसए लगेगा, हो सकता है कि एक दो चीजों का मिक्सचर हो, जैसे कि सी हो गया और 2 पॉइंटर्स हो गया, इस टाइप से। और जो हार्ड प्रॉब्लम होगी उसमें पहली चीज ऑब्जर्वेशन होगी एक। ओके, यस सर। और उसके अलावा, ऑब्जर्वेशन के अलावा आपका कोई एक डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम जरूर लग रहा होगा, और वो मेजोरिटी में ग्राफ या डीपी या फिर रेंज क्वेरीज में से कोई एक होता है। यस सर। तो सर मतलब ये है कि हार्ड जो इजी होता है वो तो मतलब बेसिक लेवल का होता है, लेकिन अगर तुम्हें हार्ड करना है तो तुम्हें मतलब बेसिक बिल्ड करना होगा छोटे छोटे उससे पार्ट से उसे, फिर ही तुम सॉल्व कर पाओगे उन्हें। हाँ, यस हार्ड के लिए सर। आपको और नॉलेज आना चाहिए। यस, नॉलेज और प्रैक्टिस बहुत नीड है। हम्म। यस, तो सर आपने कोऑर्डिनेशन और शेयर चार्ट में इंटरव्यू दिया था, तो सर उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कैसा रहा था वो। तो ठीक है, तो शेयर चैट की बात करता हूँ। जिनको नहीं पता है शेयर चैट क्या है, तो शेयर चैट बेसिकली एक स्टार्टअप कंपनी है। इसका सीटीसी या पैकेज की बात करूँ तो अराउंड 30 या 35 है। ओके, और कोऑर्डिनेशन का भी 31 है। ओके, और इंटर्नशिप में दोनों का स्टाइपेंड जो है वो 75K है। सो बोथ आर वेरी गुड कंपनीज। ओके, यस सर। तो कोऑर्डिनेशन में मैंने दोनों में बेसिकली 2 बार अप्लाई किया। कोऑर्डिनेशन का एक होता है कोडेगुन करके। ओके, तो उसमें मैंने 2 बार अप्लाई किया था। पहली बार में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट समहाउ मेरी रैंक अराउंड 270 या 270 थी, तो उस टाइम नहीं आ पाया था। सेकंड में एक और उनकी 2 बार ड्राइव होती है बेसिकली, एक अगस्त टाइम पे होती है और एक 26 जनवरी को होती है। तो मैं 26 जनवरी वाला जो था उसमें मेरी सही सही ठीक ठाक रैंक आ गई थी, अराउंड 190 के अराउंड रैंक थी। ओके, तो उससे मेरे को कॉल आया था। तो कोऑर्डिनेशन में बेसिकली मेरा R2 तक हुआ था। पहला जो राउंड होता है कोऑर्डिनेशन का, वो बेसिकली रेज्यूमे राउंड होता है उनका। 30 मिनट्स का राउंड होता है, एक जूम पर हुआ था। उसमें बेसिकली वो लोग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाया है, रेज्यूमे स्टेट किए हैं। हाँ, जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और उसमें कुछ चीज क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछते हैं, और दिस वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनी। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं बेसिकली, फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट है क्या आपका, राइट। सेकंड चीज, आपने प्रोजेक्ट जो बनाया है उसमें आपने चैलेंजेस कौन कौन से फेस किए, दैट्स इम्पोर्टेंट। थर्ड चीज जो वो पूछते हैं कि आपने पर्टिकुलर टेक स्टैक क्यों यूज किया। सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया रिएक्ट में, तो आपने रिएक्ट क्यों यूज किया, राइट। आप एंगुलर भी तो यूज कर सकते थे, क्या फायदे है रिएक्ट का, रिएक्ट वर्सेस एंगुलर पे इस टाइप के क्वेश्चन फिर आने लग जाएंगे आपके ऊपर। ओके, और बेसिकली वो क्रॉस क्वेश्चन ही करते हैं, राइट। तो मतलब आपने प्रोजेक्ट अगर अपने रेज्यूमे में स्टेट किया है तो सब पता होना चाहिए कि तुमने भाई प्रोजेक्ट में करा क्या क्या है और क्यों करा है ऐसा, कि तुमने दूसरी और टेक क्यों यूज की। एग्जैक्टली आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए। और जितना हो सके अगर आपके पास किसी कंपनी से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप शेयरचैट में अप्लाई कर रहे हो, तो शेयरचैट जिस टेक स्टैक पे वर्क करती है आपको पास अगर वो अगर है तो आपका प्लस पॉइंट होगा बहुत ज़्यादा, राइट। और जो सेकंड राउंड था वो बेसिकली डीएसए राउंड था, और ये वाला टफ क्वेश्चन था। बेसिकली 45 मिनट्स का क्वेश्चन था, और ये गूगल डॉक्स पे हुआ था। वो क्वेश्चन था डीपी ऑप्टिमाइजेशन पे क्वेश्चन था, डीपी का क्वेश्चन था, और उसमें एनक्यूपी डीपी थी और आपको ऑप्टिमाइज करना था ओ ऑफ एन स्क्वायर में, राइट। तो ये हो गया था जैसे तैसे करके। और इसमें क्या होता है
कि मतलब मेरे से अटक रहा था क्वेश्चन, तो अगर आपका क्वेश्चन अटक रहा है आप इंटरव्यू से पूछोगे तो वो बेसिकली हिंट्स भी कभी कभी मिल जाती है, राइट। तो आपको हिंट्स भी कैच करनी आनी चाहिए यहाँ पर। तो मतलब अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग इंटरव्यू से पूछ सकते हैं कि भाई हमें क्लियर करो, हमें समझ नहीं आया कि तुमने पूछा क्या है, ऐसा। हाँ, और ऐसा नहीं, और एक और चीज भी, मान लो कि आप कहीं पर अटक रहे हो, आपका मतलब थॉट प्रोसेस सही है, राइट, बट यू आर नॉट क्लियर कि ये अप्रोच वर्क करेगी कि नहीं, राइट। सो आप थोड़ा बहुत उनसे पूछ भी सकते हो इस टाइप से। अगर आप बहुत ज्यादा गलत डाल रहे हो तो वो कभी कभी हिंट भी दे देते कि ये नहीं, आप इसको इस टाइप से। ओके, मतलब सर पूछना अपने लिए बेनिफिशियल मतलब रहता है कि पूछ लोगे तो क्या कम्युनिकेशन, पता हिंट आपको मिल जाए। कम्युनिकेशन जो है ना आपका, वो मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए, मेन पॉइंट ये है। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है कि सर आप जैसे, अगर आपके 3 साल हो गए हैं तो आप मतलब काफी सारा अचीव कर ले, लेकिन अगर आप लोग पीछे देखें तो आप क्या सोचते हैं कि सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक्स रही हैं, और अगर आप जा पाए वापस फर्स्ट ईयर में तो आप कैसे क्या काम करेंगे, लाइक आपका रोड मैप क्या होगा अगर आप फिर से फर्स्ट ईयर में आ जाएं तो। हेलो। फर्स्ट ईयर वाली, इससे पहले मैं पुराना क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ, वो कंप्लीट नहीं हुआ था बेसिकली। अच्छा, सॉरी सर, सॉरी। दो नहीं होते उनके, और भी राउंड होते हैं। जो थर्ड राउंड था वो बेसिकली उनका मैनेजर राउंड होता है। मैं बेसिकली आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो उसमें रिजेक्शन, उसमें वैसे सिलेक्ट नहीं हुआ था। उसमें बेसिकली एक क्वेश्चन था सिस्टम डिजाइन का, और फिर 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि वो पूछेंगे। उसमें कुछ क्लाउड से क्वेश्चन थे, बिग डाटा क्वेश्चन थे, और एक हडूप का भी क्वेश्चन था। तो आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए काफी सारा। तो इसमें ऑल्दो मेरे को पता था कि शायद बिग डाटा का थोड़ा बहुत होगा, तो वो मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से देख लिया था। तो मगर मतलब ये कि अगर आपका कोडिंग राउंड निकल गया है, ओके, फिर आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जरूर पढ़ लो। इंटरनेट पर जितने हैं सारे पढ़ के जाओ, राइट। बट अब दूसरी चीज, राइट, जो जो मैं लर्निंग जो मेरी है कि शेयर चैट का जब मैंने दिया था तब उसका तो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है ही नहीं, अगर आप इंटरनेट पर देखोगे तो। ओके, तो उस केस में अपने को क्या करना है, तो मैंने तो कुछ ज्यादा खास नहीं किया था उसमें। शेयर चैट का बेसिकली क्या हुआ था, पहले 2-3 क्वेश्चन हुए थे, हैकर पे क्वेश्चन थे, ओके। एक वो ही था इजी मीडियम हार्ड टाइप का, इजी मीडियम हार्ड टाइप के 3 क्वेश्चन थे, तीनों हो गए थे। और मतलब ऑफ कैंपस में जब भी आप दोगे कोई भी कोडिंग राउंड अगर दोगे तो आपके सारे टेस्ट केसेस पास होने चाहिए, तभी आपको मतलब इंटरव्यू कॉल वगैरह कुछ आता है, ओके। तो वो हो गया था। उसमें क्या था, मेरे को इंटरव्यू एक्सपीरियंस से पता नहीं थे, हाँ, बट बाद में मेरे को पता चला कि शायद थोड़ा बहुत और अच्छा कर सकते थे। पहले मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था बेसिकली। और जो पहला राउंड हुआ था वो 1 आवर का हुआ था, वो डीएसई राउंड था। उसमें 3 क्वेश्चंस पूछे थे, कोड नहीं किया था हमने, खाली वो अप्रोचेस वाला था, ठीक है। मतलब आई जस्ट टेल हिम कि ऐसे ऐसे करेंगे। इजी मीडियम टाइप के प्रॉब्लम्स थे जो कि हमारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्लाइडिंग विंडो हो गया, अपना 2 पॉइंटर हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, इस टाइप के प्रॉब्लम्स थे, और वो तीनों हो गए थे, ओके। और जो सेकंड राउंड था उसमें बेसिकली 3 चीजें उन्होंने जोर दिया था। पहली चीज तो आपका डेवलपमेंट पूछा था बहुत ज्यादा, ओके, जो प्रोजेक्ट्स हैं, और कोर पूछी थी, कोर जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं कोर सब्जेक्ट में। तो कोर सब्जेक्ट में डीवीएमएस पूछा था उन्होंने, और ओएस सर्वर पूछा था, ओके। और जो सेकंड में क्या हुआ था ना स्टार्टिंग में, और ये जो आपकी स्टार्टअप्स टाइप की हैं जो बहुत ज्यादा पे करती हैं, उन सब में इस टाइप से कॉमन है बेसिकली, मैंने अपने रियलाइज किया है कि स्टार्टिंग में जो हुआ था ना, तो मेरा जावास्क्रिप्ट से थोड़ा रिलेटेड प्रोजेक्ट था, उन्होंने जावास्क्रिप्ट में कोड कराए थे सीपी के प्रॉब्लम, डीएसए के प्रॉब्लम्स, राइट। सिंटैक्स आना चाहिए, मतलब उसका सिंटैक्स आना चाहिए, आपको यूज करना आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेस्टअप हो गए, तो ठीक है। बाकी फिर उसमें जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पूछे। हाँ, तो ये सब वो नहीं, बहुत बेकार गया था, तो उतना नहीं था। तो एक चीज है कि फिर मैंने देखा कि जो अपनी और भी स्टार्टअप्स आएंगी जैसे कि स्प्रिंकलर वगैरह हो गई, तो उनका भी सिमिलर ही है, वो भी इसी टाइप से करते हैं। जावास्क्रिप्ट वगैरह जो चीजें हो गई उसमें मतलब बेसिकली डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करना,
क्योंकि इससे आपका चेक हो जाता है कि आपको बेसिकली लैंग्वेज पे कमांड है या नहीं, राइट। लैंग्वेज के बारे में तुम्हें कुछ आता है ढंग से कि नहीं ये सब? हाँ, बिकॉज स्टार्टअप में व्हाट दे वांट कि आप डायरेक्टली जाओ और आप डायरेक्टली काम करो वहां पर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ना कि ये दो और भी मैंने दिए थे काफी सारे इंटरव्यूज, उनमें से जल्दी जल्दी से कुछ चीजें बता देता हूँ जो कि सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आई थिंक आप सबको जानने के लिए। ओके, तो एक कंपनी है इनोवेसर करके, ठीक है। यस सर। और वो हायर करती है उनका बेसिकली जैसे कोऑर्डिनेशन का कोडेगुन होता है, वैसे उनका एक प्रोग्राम होता है समर गिग्स करके। ओके, तो उसमें लास्ट ईयर क्या होता था कि उन पर प्रोजेक्ट्स बनाते थे, बट अब वो चेंज कर दिया उन्होंने। पहला राउंड जो है वो डीएसए कर दिया था इस बार, ठीक है। तो उसमें मैंने किया था और डीएसए में अगेन डीएसए राउंड क्लियर हो गया था फिर से इसका, और फिर उसमें खाली एक राउंड था इंटरव्यू का। ओके, हेलो, यस सर। समर गिग्स के बारे में कैसे पता चला, किसी ने डाला है? तो वही बात है, लिंक्डइन से पता चला है सब कुछ। ओके, हाँ, लिंक्डइन से पता चला है, ठीक है। वो पोस्ट वगैरह फीड वाली चीज डेली आप अगर 5-10 मिनट भी लिंक्डइन चेक करोगे तो आपको दिख जाता है। ओके, तो सर हम लोग को अपडेट तो रहना ही पड़ेगा कि भाई ये अपॉर्चुनिटी कब आ रही है, तो इसके बारे में पता करना चाहिए। बाकी फ्रेंड से भी कम्युनिकेट करना सही रहता है वो। हाँ वो भी ठीक है। इनोवेटर के बारे में बता रहा था कि उसमें क्या हुआ था, खाली 45 मिनट्स का राउंड था। डीएसए तो खैर कोडिंग था, उसके बाद पूरा उन्होंने डेवलपमेंट बेस पूछा था। और बेसिकली मैंने बैकएंड के लिए अप्लाई किया था वहाँ पर, तो वो नहीं हुआ था मेरा, बिकॉज मेरे को बैकएंड आता नहीं था, अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं गया था। ऑल्दो वो क्रैक करना काफी इजी था। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास इजी अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। और एक तो उस टाइम मेरी इंटर्नशिप भी थी कोडिंग निंजास में, तो वहां से भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, टाइम नहीं मिल पाया। और ये थोड़ा डायलेमा टाइप का होता है कि आप इंटरव्यू में प्रिपरेशन करो या फिर इंटर्नशिप छोड़ो, उस टाइप से। मतलब एक पे डेडिकेटेड रहना होता है, ऐसा कुछ। टाइम नहीं मिल पाता है इस टाइप से। हाँ, तो मतलब ये है कि और उनका जो डीएसए राउंड था इनोवेशन का, वो उतना टफ नहीं था बेसिकली देखा जाए तो। अगर आपका एवरेज सीपी है और आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है तो फिर भी आपको कंपनीज मिल सकती है। ओके, ऐसे एक पोस्टमैन का नाम सुना होगा शायद, पोस्टमैन के एपीआई यूज करते हो तो। हाँ, API रिक्वेस्ट सेंड तो करेंगे। उनका भी मतलब कुछ खास नहीं था, कोडिंग राउंड भी मीडियम लेवल का था। ओके, तो ये चीज हो गई। और इसमें एक चीज है जो मेरे को अभी भी लगती है रिग्रेट वाली चीज, उसमें क्या है कि आपको पल्लो की अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता है। ओके, पर ये जो अपॉर्चुनिटीज निकलती है ना ऑफ कैंपस की, ये बहुत ज्यादा जल्दी मतलब शुरू होती है फिर बंद हो जाती है। कुछ कुछ होती है 2-3 दिन में ही बंद हो जाती है, राइट। ऐसे एक रिसेंट में बताता हूँ, मेरी कोडिंग जस्ट में एक मतलब टीममेट ही था जो मेरा, वो गोजेक में रिसेंटली सिलेक्ट हुआ है। गोजेक का जो पैकेज है अराउंड 12 LPA का है। उसका प्रोसेस जो था बहुत ही ज्यादा इजी था। एक कोडिंग राउंड था, उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस और 10 MCQs, और फिर एक इंटरव्यू, बस एक इंटरव्यू डीएसए बेस्ड और उप्स रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, बस तो इतना ही। वो काफी इजी था और मैंने अप्लाई नहीं किया था, ऑल्दो मेरे को दिख गया था कि ये है, राइट। मैं सोचा कि टाल दिया, बाद में अप्लाई करेंगे, और फिर नहीं किया। तो ये है कि अगर, और वो बहुत जल्दी बंद हो गई थी, अराउंड 2-3 दिन में बंद हो गया था। तो जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज दिखे तो आप अप्लाई जरूर कर दो, वहां पर ये है, राइट। सर एक तो अपना रेज्यूमे रेडी रहना चाहिए। कई लोग होते हैं कि रेज्यूमे रेडी नहीं है तो यार अभी 1-2 दिन में कर देंगे, तब तक वो लिंक एक्सपायर भी कर जाता है, ऐसा भी रहता है। हाँ, ये रहता है। और अगर आपका एवरेज सीपी भी होगा तब भी आपका कंपनीज में चल जाएगा। कुछ ही कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा मतलब सीपी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, उनमें से मीडिया.नेट हो गई, कोऑर्डिनेशन हो गई, बस इसी टाइप की, और गूगल हो गई। बस इस टाइप की कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा सीपी रिलेटेड प्रॉब्लम पूछती हैं। हार्ड डीएसए, बाकी सबका जो डीएसए होता है वो इजी मीडियम लेवल का ही होता है, हार्ड नहीं पूछते हैं वो। मतलब जो थोड़ी बहुत टॉप क्रीम कंपनीज होती हैं वो थोड़ा डीएसए में अंदर ज्यादा घुसती हैं, वरना बाकी सब बेसिक मीडियम लेवल का आता है अपना जो कोडिंग राउंड होता है। एग्जैक्टली। सर
और सर फिर हाँ सर, एक और था कि आपने मतलब इतना दिया था, तो सर अगर आप फर्स्ट ईयर वापस, आपको एक चांस मिले कि भाई फर्स्ट ईयर में वापस आप आ जाओ, तो सर आपका क्या रोड मैप रहेगा कि मतलब मुझे ऐसे प्रिपेयर करना है और कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करनी है, ये सब बैलेंस में रहे, तो सर आप कैसे क्या मैनेज करोगे? पहली चीज तो रोड में वैसे कोई चीज होती नहीं है, राइट। मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने भी देखे थे काफी सारे यूट्यूब पे, आप देखोगे कि उसमें देखा होगा कि 1 करोड़ का पैकेज कैसे लें, ये सब वगैरह वगैरह, राइट। तो बात वही है, बता सब देते हैं करना क्या है, जब आप करने बैठते हैं तब होता नहीं है, फिर हम छोड़ देते हैं। दिस हैपेंस विद एवरीवन, राइट। बट पॉइंट ये है कि छोड़ दिया हो गया, बट एक बार आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, बस एक चांस होता है, एक बार आपका रीस्टार्ट हो गया फिर उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो। और ये चीज है। और सिलेक्शन वाले कुछ आपने पूछे नहीं, मैं ही बता देता हूँ। उसमें थोड़ी बहुत चीज थी जिसमें इतनी सारी का वो इंटर्नशिप में जो सिलेक्शन हुआ है, उसमें क्या होता है ना कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई कर दो और रेफरेंस वाली चीज हो गई। इसके अलावा क्या होता है ना कि मतलब आपकी अपॉर्चुनिटीज निकल गई, मान लो, राइट, आप अप्लाई नहीं कर पाए। तो ये मेरे साथ कोडिंग निंजास में हुआ था। उन्होंने मतलब 24 घंटे के लिए ओपन किया था फॉर्म और फिर 24 घंटे में क्लोज कर दिया था। ओके, तो मैं अप्लाई नहीं कर पाया उसमें। हाँ, और फिर मैंने क्या किया, उनको मैसेज किया लिंक्डइन पर कि आई एम दिस एंड दैट, मेरी इतनी रेटिंग है, मैं कोड प्रोसेस पे एक्सपर्ट हूँ, ये वगैरह वगैरह, रैंकिंग वगैरह। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आई विल कंसीडर यू फॉर नेक्स्ट हायर, राइट। उसके 1 महीने बाद उनका आया था मैसेज टाइप का आया था कि आप ईमेल करो। इस पर ईमेल भेजा था बेसिकली उन्होंने, उसमें एक टास्क दिया था प्रॉब्लम सेटिंग का, और वो मैंने किया था। उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था और फिर उसका सिलेक्शन हुआ था, इस टाइप, राइट। तो कभी कभी ये चीज भी काम कर जाती है। मतलब बात ये उन्होंने आपको अलग से लिंक भेज दिया इंडिविजुअली? हाँ, आपने उनको मैसेज किया बेसिकली, आप अप्लाई नहीं कर पाए फिर भी आपने अप्रोच किया, बात की है, राइट। तो बार बार मतलब ये कि ट्राई करते रहना अपने को, तो कभी ना कभी आपका हो ही जाता है इस टाइप से। हेलो। हाँ यस सर। तो सर और आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि आपने मतलब और कुछ लगाओ पॉइंट रह गया हो? बेसिकली तो यही पॉइंट्स हैं। और कोडिंग राउंड्स में अगर आप करोगे तो बेसिकली वो क्या क्या देखते हैं, तो मतलब मैंने डीएसए काफी सारे दिए हैं राउंड्स अभी तक। जीएफजी का मैं बताता हूँ सिंपल तरीका से, ठीक है। तो मतलब आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट राउंड का, मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया एग्जाम्पल टाइप का होगा कि आपके पास क्वेश्चन क्या था कि एक एरे है आपके पास, उसमें जो इंटीजर्स है वो 0 to n-1 है। ओके, अब आपको क्या करना है, उसमें डुप्लीकेट नंबर बताना है। एक ही डुप्लीकेट नंबर है, बाकी सब सिंगल टाइम्स, राइट। तो आप ये कैसे, ओके, सो आई टेल हिम ब्रूट फोर्स जो कि n² था। ओके, और बेसिकली टाइम और स्पेस के हिसाब से बताता हूँ, जो O of n² और O of 1 स्पेस में था। ओके, देन आई टेल हिम एन ऑप्टिमाइज अप्रोच जो कि बेसिकली हैश मैप का था, वो O(n) टाइम O(n) स्पेस में था। फिर मैंने एरे को लेकर ही, बेसिकली एक ट्रिक होती है उसमें कि एरे को -1 मार्क कर लेते हैं हम, तो वो हैश मैप की तरह काम कर जाता है हमारा इस टाइप से। जैसे कि कोई नंबर 3 है तो उसको हमने मार्क कर दिया, -3 हो गया वो, ठीक है। अब मैंने दोबारा एरे में ट्रैवर्स करते हुए मेरे को 3 मिला और वो नेगेटिव है, तो मैं समझ जाऊंगा कि नेगेटिव नंबर है, इस टाइप से, राइट। तो ये मेरा O(n) टाइम O(1) स्पेस में हो गया, ठीक है। अब इंटरव्यू ने मुझसे पूछा कि इसको और ऑप्टिमाइज करो, O(n) टाइम O(1) स्पेस, इससे ज्यादा क्या ऑप्टिमाइज हो सकता है। आप बिना मॉडिफाई करके करो, अपने एरे को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई मत करो। ओके, तो यही है, आप स्टार्टिंग हमेशा ब्रूट से करो, स्टार्टिंग ब्रूट से करो, फिर ऑप्टिमाइज पे जाओ। ऑल्दो उसका सॉल्यूशन है, और एक बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट होता है स्लो पॉइंटर फास्ट पॉइंटर करके। ओके, तो उससे वो सॉल्व हो जाता है। तो यही है इंटरव्यू। अगर आप दो डीएसए के, तो सबसे पहले कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करो, देन आप जंप करो ऑप्टिमाइज तक। अगर वो ऑप्टिमाइज करने को बोले तब और ऑप्टिमाइज करो। ओके,
और बेसिकली वो लोग क्या क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं आपका इंट्यूशन सही है या नहीं। इंट्यूशन अगर आपका करेक्ट है, इंट्यूशन मतलब आप अप्रोच कर रहे हो कि नहीं, मतलब रट्टा मार के तो नहीं किया इस टाइप से। ओके, हाँ, मतलब आपने स्लो पॉइंटर पास कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या बोल रहे हो? तो मतलब कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ये वो देखता है। कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको, प्रूफ्स वगैरह आने चाहिए, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था फिबोनाची नंबर वाला। हाँ, तो इसमें मैं खुद ही मेस्ड अप हो गया था, मेरे को भी नहीं पता था वो कैसे आता है मैट्रिक्स, राइट। एक छोटे से स्टार्टअप का इंटरव्यू था और अराउंड हाफ एन आवर टाइम में चला गया था और एंड में मेरे से हुआ ही नहीं था। तो ओके आपको सर। इंटरव्यूज मेनली ये होता है कि कैसे काम कर रही है इंटरनल चीजें, अगर आपका 2.10 है तो वो कैसे चल रहा है। ओके, अब डीपी बना रहे हो, आपके डीपी के स्टेट्स कैसे बन रहे हैं इस टाइप से, और इंट्यूशन में ये सब देखते हैं वो। हाँ, और फिर आपका कोड देखते हैं, आपका कोड कितना सही है, मतलब आप एफिशिएंटली लिख पा रहे हो या नहीं। और उसमें कंपनीज अलग अलग होती हैं, कुछ एडिटर्स देती हैं, कुछ नहीं देती हैं, कुछ गूगल डॉक्स में करती हैं, तो उसमें एडिटर नहीं रहता है, सिंटैक्स वगैरह कुछ नहीं बताते हैं आपको, आपको खुद ही कोड करना पड़ता है सब। और उसमें ऑटो कंप्लीट भी चला जाता है उसमें। हाँ, ऑटो कंप्लीट तो कहाँ से मिलेगा, ऑटो एडिटर में भी नहीं मिलता है। सर नहीं, कभी कभी हो जाता है ना कि हम लोग को आदत पड़ जाती है, ऑटो कंप्लीट हो जाता है हाँ, इसमें। तो ये चीज हो गई है। हम्म हाँ, तो उसमें जो आपका कोड होता है ना, वो बेसिकली कुछ चीजें चेक करते हैं उसमें कि आपने वेरिएबल जो नेम्स हैं वो मीनिंगफुल लिखे हैं या नहीं है, राइट। मान लो कि आपको मिनिमम एलिमेंट लिखना है तो आप एम आई करके नहीं लिख सकते, आपको पूरा लिखना पड़ेगा MIN और फिर ई कैपिटल से कैमल केसिंग कहते हैं, राइट। तो आपका कैमल केस अच्छा होना चाहिए, आपका फॉर्मेटिंग भी ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब आप M=0 लिखोगे तो कुछ पूरा चिपका के नहीं लिखना चाहिए आपको, मतलब स्पेसिंग होना चाहिए, मतलब जैसे आप सप्लाई वगैरह किसी में भी कोड करोगे, फॉर्मेटर यूज करोगे तो उस टाइप की फॉर्मेटिंग आपकी होनी चाहिए, राइट। तो आपका कोड अच्छा दिखाई देगा इस टाइप से। क्लियर कोड होना चाहिए हमारा, मतलब क्लियर, कि क्लीन रीडेबल होना, हो। रीडेबल प्लस क्लियर दोनों चीजें चाहिए उन्हें। सर ठीक। सर सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि सर पहले क्या होता था कि बच्चे थर्ड ईयर कॉलेज में इंटर्नशिप का देखते थे, लेकिन सर आजकल क्या हो रहा है कि सब लोग फर्स्ट और सेकंड ईयर में इंटर्नशिप ढूंढने लगते हैं कि अभी से हम लोग को एक्सपीरियंस मिल जाए, वर्क एक्सपीरियंस बाहर का। तो सर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कितना आपको फायदा देता है कि अगर आप फर्स्ट या सेकंड में ही कोई इंटर्नशिप ग्रैब कर लो? हाँ, फायदा बहुत ज़्यादा मिल जाता है और एक्चुअली में चांसेस बहुत ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, राइट, फर्स्ट सेकेंड ईयर में। और अगर मैं बात करूँ तो गर्ल्स की बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। गर्ल्स की अराउंड 20 के अराउंड होगी, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब में तो मिल जाएगी आपको, बहुत सारी होती है। एडोप का शी होता है, शायद पता नहीं क्या होता है। अमेजोन का अमेज वाउ चल रहा है अभी, देख लेना, हाँ वाह चल रहा ठीक है। और ऐसे बहुत सारे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का हुआ था याद हो शायद, तो सेकंड ईयर के लिए जैसे है। एंगेज करके। हाँ, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं, एक्सपीडिया वाले मैंने बताया। हाँ, और अभी तो मतलब वही आपको लिंक्डइन से एक्चुअली में पता चल जाती है सारी चीजें, और अगर फर्स्ट सेकंड ईयर में अप्लाई करोगे तो फायदे बहुत सारे होते हैं। पहली चीज तो हम पैसे वाली बात हो गई, ठीक है, पैसे आने लग जाते हैं, थोड़ा बहुत लगता है कि IIT भोपाल मैक्सिमम लोगों को पता होगा, फर्स्ट ईयर वालों को नहीं पता होगा कि अपने क्या चल रहा है कॉलेज में। हाँ, अभी ओके, आएंगे कॉलेज। कॉलेज में क्या चल रहा है उस टाइप से। हाँ, तो ठीक है, तो पैसे आने थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं हम, सब कुछ बेकार नहीं जाएगा, कुछ तो कर ही लेंगे इन द एंड, राइट। तो पहली चीज ये हो जाती है हमारी। हम्म, हाँ, और सेकंड चीज क्या होती है, आपका एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है, आपका CV बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप मान लो कि आपने हैकर में इंटर्न किया, राइट, आपके पास एक ब्रांड नेम आ गया कि आपने हैकर में कुछ किया है, ठीक है। तो अगर आप रेफरेंस के लिए करोगे किसी से तो वो देगा कि बंदे ने अगर हैकर में इंटर्नशिप वगैरह कुछ भी किया है तो कुछ तो आता ही होगा। ओके, सो वो रेफरेंस में भी हेल्प कर देता है। ओके, मतलब केपेबल है, ये पता चल जाता है कि इसने ये काम करने केपेबल है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। या यस एग्जैक्टली। सर। और आप लिंक्डइन पे भी जाके देखोगे तो और जो जॉब्स वगैरह पे है उसमें अगर आप सर्च करोगे इंटर्नशिप में तो उसमें भी आपको बहुत सारे इंटर्नशिप मिल जाएंगे, राइट। तो उसमें से भी आप अप्लाई कर सकते हो जो आपको पेड लगे। और वो जो इंटर्नशिप्स होती है ना, वो डायरेक्टली मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर किसी को भी ले लेते हैं, इस टाइप से रहते हैं, तो कुछ फर्क नहीं होता है, मतलब 10-20 के की होती है अराउंड वो।
ओके ओके सर, मतलब स्किल अपने पास है तो ये मैटर नहीं करता है ऐसा? हाँ, इसमें से कुछ एक दो चीजें और बता देता हूँ मैं, जो बहुत इजी रहती है क्रैक करना। एक होती है चेक करके कंपनी होती है, उसमें क्या रहता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं और आप बेसिकली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको 189 रुपीज मिलते हैं, ओके। और उसमें टैक्स कट जाता है तो 174 मिल जाता है, ओके। और वो अराउंड आपके एक 45 to 1 आवर्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट आराम से अपने हिसाब से कर सकते हो तो ऐसा बैठता है, अगर आप 2-3 घंटे भी काम करोगे इस टाइप से चेक पर, तो आपका अराउंड 15-20 की बन जाएगा, ओके, इस टाइप से। हाँ, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है वो काफी इजी रहता है। बेसिकली आप उसको ओपन करोगे, बेसिक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोलते हैं इसे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ये मैंने भी किया था आपने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में कुछ महीने तक, फिर इस कोडिंग निंजा में इंटर्नशिप ले ली थी, थोड़ा कम है ये। तो उसमें क्या रहता है, आपको 10 क्वेश्चन बस सॉल्व करने रहते हैं, उसमें से 60% मार्क्स चाहिए रहते हैं। अगर आपके उतने हो गए तो बस और कुछ नहीं, फिर बस आपका बस ऊपर आ 60 कट जाता है, ऑफ रहता है, उसके ऊपर है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। बस आप सिलेक्ट हो गए हो, ओके। दैट्स इट। तो ये काफ़ी इजी है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप देखो तो सीपी रिलेटेड चीज़ें हैं सेकेंड ईयर्स के लिए। सीपी में काफ़ी सारा स्कोप है, अगर आपकी प्रॉब्लम सेटिंग अच्छी है तो आप बेसिकली कोड शेफ पे प्रॉब्लम सेटिंग कर सकते हो। उसमें सबमिट अ प्रॉब्लम का ऑप्शन आता है, तो आप उसमें सबमिट करो तो वो भी सिलेक्ट हो सकता है आपका, राइट। और आप अलग अलग जो कंपनीज है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कोडिंग इंजर्स वगैरह हो गए, वो भी मतलब हर किसी भी ईयर के स्टूडेंट को ले लेते हैं, राइट। अब ये तो हो गई छोटी कंपनीज के बाद, ठीक है। अब बड़ी कंपनीज में भी जो होती हैं वो भी सेकंड ईयर्स को हायर करते हैं, राइट। इवन फर्स्ट ईयर्स के लिए भी कुछ उनके प्रोग्राम्स होते हैं, हाँ। तो और जो होती है कंपनी वो 6 मंथ्स के लिए भी हायर करते हैं, जैसे मैंने सीएन में किया था तो उसमें भी 6 मंथ्स का ही था। तो 6 मंथ्स का क्या होता है, जैसे कि शेयर चैट हो गई हमारी, तो वो ये फर्स्ट सेकंड ईयर को भी हायर किया है उन्होंने इस बार 6 मंथ्स इंटर्न के लिए। तो सेकंड ईयर में भी आपको इंटर्नशिप मिल सकती है 6 मंथ्स की, और आप पूरे सेमेस्टर एज डी इंटर्न कर सकते हो। ऐसे हैकर रैंक में भी आपको चांस मिल जाता है। तो वो ईयर्स को नहीं देखती है कुछ कंपनी कि आप थर्ड ईयर में हो तभी हम आपको समर इंटर्नशिप देंगे, वो कहते हैं हम कभी भी दे देंगे। और ये तो खाली कुछ कंपनीज है, ऐसी बहुत सारी होती है, राइट। कुछ नाम्स बता देता हूँ, जैसे कि शेयरचैट का बता दिया, हैकर रैंक का बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट का एंगेज होता है, ओके। सैमसंग का एक परिचय करके होता है, वो भी सेकंड ईयर को हायर कर, हाँ। मेजोरिटी और गर्ल्स के लिए तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज होती है, फ्लिपकार्ट से लेकर लिंक्डइन वगैरह सारी, वो सब हायर सेकेंड करने ईयर के में लिए आती है। वो सेकंड ईयर को भी हायर करती है और फर्स्ट ईयर में भी कुछ को हायर करते हैं। गूगल का एक स्टेप का प्रोग्राम होता है, तो उसमें बहुत सारे रहते हैं। फ्लिपकार्ट में भी होता है ऐसे प्रोग्राम। तो बस वो ये कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है तो अप्लाई कर लोगे, आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। फर्स्ट थिंग है कि आपको अवेयरनेस बढ़ानी है। अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी, वही सारी चीजें, आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, आप यूट्यूब पे काफी सारी चीजें सर्चिंग करो, गूगल सर्च करो, तो आपको पता चल जाता है, ये रहता है। या फिर मतलब अपडेट रहना है कि क्या चल रहा है हमारे पास, तो अपॉर्चुनिटी आती रहती है। ऐसा नहीं कि अगर तुम ऑफ कैंपस भी देखो तो कोई वो है कि हमें नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, बस अपडेट रहना पड़ता है हम लोग को। एग्जैक्टली मैंने ऑन कैंपस में बस 2 ही कंपनी से, चलो ठीक है बाद में बताएंगे, ये रहने दो। ओके तो सर और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? ये तो क्वेश्चन खत्म हो गए। क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं सर अभी हमारे जूनियर्स और सर बैचमेट्स हैं मेरे, तो उन लोग को अगर कुछ पूछना हो तो सर से पूछ लो अभी, एक एक करके। हाँ जी, आप लोग पूछ सकते हो। बाकी मैं एक दो चीजें और बता दूंगा आप लोगों के लिए, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए जो चीजें आप गलती करोगे और आप डेफिनेटली करोगे मेरे बताने के बाद भी, शायद एक दो लोग ना करें, फिर भी हटाना तो चाहिए। ओके तो वो अपन एंड में बताएंगे, ठीक है, आप क्यों नहीं कर दोगे।
तो अभी सूरज सर और पंकज सर अभी हमारे साथ है, तो जूनियर्स और अपने बैच में भी जिसको भी कुछ भी पूछना है, जिसको कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है उनसे एक एक करके। अच्छा कनेक्शन बना लो, बाद में रेफरल भी मिल सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है सूरज सर से। हाँ शुभंकर भाई। हाँ सर, तो जैसे आप अपनी जैसे मैं आपको सर 3 सालों, लगभग 2 या 3 साल से जानता हूँ, तो हाँ आपकी जर्नी में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, इसमें स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ। यस यस। हाँ, तो क्या सर आपने जो जैसे कुछ ओपन सोर्स प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कुछ के बारे में तो डेफिनेटली सबको पता होता है, जीसॉक हो गया जैसे, लेकिन कुछ जैसे आउटरीची है या पॉस एशिया है और बहुत सारे जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता, तो क्या सर आप उनके बारे में बता सकते हैं और क्या आपने इनमें अप्लाई किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज अभी जैसे जून, मिड जून चल रहा है और ये प्रोग्राम्स अगले साल लगभग शुरू होंगे, तो उसके लिए मैं क्या तैयारी करूँ या कोई भी क्या तैयारी करे और उसके लिए क्या रोड मैप रखना चाहिए। इट्स एक्चुअली आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ऑर्गेनाइजेशंस चूज कर लेने हैं, ठीक है। ठीक है। और जैसे कि आपके जी सॉक्स हो गया, आउटरीच हो गए, मोस्टली हमेशा रिपीट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। तो इनमें आप लिस्ट में जाओ, देखो कौन से रिपीट हो रहे हैं, और जाओ कम्युनिटीज में इंटरेक्ट करो कि हाँ वापस वो अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं करने वाले अगले साल के जी सॉक या आउटरीच में, या जैसा कुछ भी हो, पॉज एशिया जैसा, ठीक है। फिर जाओ उसमें अपना एक कम्युनिटी ढूंढो, अपना एक प्रोजेक्ट ढूंढो और उसमें कंट्रीब्यूट करना अभी से चालू कर दो, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी उतना ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे प्रोजेक्ट से आप, ठीक। तो उतना ही चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि आप एक फेमिलियर फेस हो कम्युनिटी के लिए, तो वो आपको एक प्रेफरेंस पक्का देंगे। और इसमें जो उनके बेसिकली प्रोबेबल मेंटोर्स वगैरह होते हैं, उनके साथ जान पहचान क्रिएट कर लो। हाँ यस यस यस। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करना है, ठीक है। ओपन सोर्स इज जस्ट फॉर एक्सपीरियंसेस, एंड अगर इसमें आपको हाँ पैसे मिलते हैं जीसॉक से या आउटरीच से, तो कोई मना नहीं करेगा पैसों को, बट क्या है कि आपको बेसिकली यहाँ पे एक्सपीरियंसेस को देखना है, ठीक है, कि हाँ आप किस तरह से काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं। आई मीन एक प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा कोड बेस होता है, सबसे पहले वही होता है, ठीक है। तो उस कोड बेस को आप किस तरह से रीड करके उसमें एक नई चीज इनोवेट करते हो, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरों का लिखा हुआ कोड पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है इसमें, अपने टेक इंडस्ट्री में। और आई मीन वो काफी ज्यादा यूज आता है आगे, तो इसको जितना जल्दी से जल्दी आप सीख सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। सर जैसे आपने कहा कि कमिट करना शुरू करें, तो हाउ टू स्टार्ट कमिट, मतलब क्या प्रोसेस रहता Process is basically you approach your organization and ask for tasks, ठीक, कि वो अभी क्या कर रहे हैं। कि जैसे कि अगर आप टॉर में गए, वो टॉर वाले बोल रहे हैं कि भाई हम तो IPv6 पे काम कर रहे हैं, तो हाँ तुमको भी IPv6 पे काम करना है। तुमको बस उसमें देखना है कि हाउ यू फिट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फिर वहां पे लोगों से कम्युनिकेट करके पूछना है कि भाई मेरे लिए सबसे सही क्या होगा, ठीक। वो आपको खुद ही देंगे, सारी इश्यूज खुद ही अलॉट करेंगे। और उसके बाद आपको आई मीन यू हैव टू सॉल्व दोज इश्यूज एंड यू हैव टू राइज अबव। जैसे कि आप अभी क्या है कि आप एक प्रोजेक्ट पे तो रह नहीं सकते, क्योंकि ये भी तो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो जैसे कि बिटकॉइन वाले प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, MLAI प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे भी फोकस कर सकते है। और सर हैं। जैसे ये जो जितना भी प्रोसेस है, ये हमें गिटहब के माध्यम से करना है। हाँ यस यस, गिटहब के माध्यम से भी हो सकता है। जैसे कि मैंने लिनक्स में किया हुआ है ना, तो लिनक्स में क्या है कि वो ईमेल के माध्यम से गिटहब पे नहीं चलता, अच्छा। वो उसके प्राइवेट सर्वर्स हैं,
और वो आपको ईमेल से पैचेस भेजने पड़ते हैं, वैसा ईमेल वर्क है वो। तो जैसे मतलब हाँ कोई इशू मैं ढूंढ रहा हूँ या हाँ फिर हाँ। मैं उनके साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे करूँ? उनका मेलिंग लिस्ट होगा, उनकी कम्युनिटी का कोई IRC होगा, उनकी कम्युनिटी का कोई ग्रुप चैट होगा, जाइए वहाँ पे हाय डालिए और बोलिए कि हाँ हाँ मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा और मेरे हिसाब से आपका प्रोडक्ट ये है और मेरे हिसाब से ये काम हो सकता है, या आप कोई काम बताइए मुझे। जैसे कि मैं लिनक्स में गया था, तो लिनक्स में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, मतलब पूरा ऐसे है कि जंगल है एक तरह से, ठीक है। वहां पे कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, और आपको जाके खुद ही अपनी जगह बनानी पड़ती है वहां पे। अगर आप लिनक्स में जाके कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो वहां पे जाओ अपने, आई मीन जैसे कि उनका तो ईमेल वो है, क्या कहते हैं, ईमेल सिस्टम है उनका, ठीक है। तो वहां पे जाइए, वहां पे देखिए और फिर वहां पे जाके डेड्यूस करिए कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई भी इशू उठाओ और काम करना चालू कर दो उसमें। अच्छा, और शायद से कुछ कंपनीज के स्लैक चैनल्स भी होते हैं या ग्रिड ग्रिड चैट इस टाइप का कुछ एक होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, इस पे भी उनके चैनल्स होते हैं, तो वहाँ भी अप्रोच किया जा सकता है। हाँ बेसिकली आपको एक कंपनी चुननी है, बेसिकली आपको एक, वो सब तो हो ही जाएगा। प्लेटफॉर्म क्या है कि जी टैलेंट टैलेंट जो होता है ना वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। आपका टैलेंट अगर इधर है गिटहब में, तो आपका टैलेंट मेल सिस्टम पे भी होगा, आपका टैलेंट CVS पे भी होगा। तो ऐसा है, टैलेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रखना है, और कंपनी बस आपको चूज करनी है कि हाँ, आप एक बार चूज कर लिए कि हाँ आपको इसमें काम करना है, ये करना है, ये करना है, आप बेसिकली क्लैरिटी आ गई आपको, फिर उसके बाद आप हार्डवर्क करना चालू कर सकते हो, ऐसा है। ठीक है। और कोई अगर कुछ पूछना चाहता और है किसी को तो कोई मेरे को क्वेश्चन है तो पूछ लो। एक्चुअली ऑलरेडी हम टाइम पे बहुत ओवर हो चुके हैं, 28 हो गए, तो एंड करेंगे या फिर अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके, सो मैं एंड कर रहा हूँ। और थैंक यू ऑल, especially the invitees Okay, and all the speakers. It was a nice session. Thanks agreement Tushar, also Suraj sir and Pankaj. Thank you all. You can leave. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सूरज सर, थैंक्स अ लॉट पंकज।